وعلیکم السلام سر. Okay, student, we are starting a session. Today, our course content is here. We are talking about the Middle Age. Middle Age, the era between the Dark Age and the late Italian Renaissance. So we have to be start. Here is a course content in front of your screen. You can see that this prescribed by your examiner. Here is the content: classical age versus the dark age, religious institutions in Middle Age and how they influence the medieval period in medieval Europe. Religion and enlightenment. One is age of faith. Enlightenment is the age of reason. What is the contrast and difference between these two? And then we are talk about today the Protestantization of Christianity, how they make reform in religious uh, discourse and religious practices, and then religious domain in Enlightenment, religious uh, religious dominant was highly affect the Enlightenment period as well. And then we already talk about the Saint Augustine philosophy, which is a scholastic philosophy. And what is scholastic philosophy? We have to keep it like from the previous lecture as well. And then we move on to the today's content, that was Protestantization, discursive practice, and how the religious institution control over the Europe in the medieval age. All right. There is some exam question as well. Would like to share with you that discuss the religious point of view according to Enlightenment in the context of medieval age. How religious institute influence the state in middle age. ये बात हो रही है पोप की, पेपेसी की, होली रोमन एम्पायर की, जहाँ पे चर्च बिशप ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था मिडिवल पीरियड में. फिर एक और आइडिया है, डिस्कस द आइडिया ऑफ सेंट ऑगस्टीन. सेंट ऑगस्टीन इज अ स्कॉलिस्टिक फिलोसोफर, इज अ क्रिश्चियन, और he put their argument on the basis of theological basis. It highly concerned with the concept of God, existence of God, attribute of God, and free will and determinism. So they have theological argument. Why it is called the dark age? Why medieval period? It means here the medieval age. Why middle age is called the dark age? Due to the answer is that due to the Western uh, downfall of intellectual contribution. They are highly engaged in the religious extremism and holy wars, and they're nothing to produce in the dark age. But this age is also known as the age of faith. So it will also be examined as describe the age of faith. Medieval period is also called as the age of the faith because here the faith is dominating over the reason. And then some characteristic of medieval religion. What are the characteristics of medieval period and the medieval religion, medieval age, and why religion is dominating in medieval period? So we have to be quick review over that, and then we continue our session. I have already told you that it was a time of 5th century to 10 to 15 approx. And there is a large Roman world, the Roman Empire, and it's divided into two: the Byzantine Empire, the Eastern Empire, and the Roman Empire. And the Roman Empire, when Christianity spread, this one become completely supervision under the Pope in the church, in the religion. So all literature writing, and even though the translation of the Bible is also writing in the form of Latin as well. ठीक है. तो रोमन एम्पायर का जो अर्ली मिडिल एज है उसकी क्या फीचर्स है? एक तो रोमन एम्पायर का डिक्लाइन है जो दो हिस्सों में बढ़ गया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एम्पायर. और जो रोमन से यानी ग्रीक्स के बाद रोमन से जो कंट्रीब्यूट किया रिलीजन में, लैंग्वेज में, लॉ में, आर्किटेक्ट्स में,
पॉलिटिकल एरिया में, वो सब हमें नज़र आता है। और दूसरी बात, इस ज़माने की जो लिटरेचर प्रोड्यूस करने की जो एक लैंग्वेज थी वो थी लैटिन। आज भी अगर आप बहुत से अल्फाजों को देखते हैं, इफ यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिक्शनरी, तो यू विल सी दैट इट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इट इज ड्राइव फ्रॉम द पर्शियन वर्ड। बेसिकली ये गोल्डन एज के ज़माने की, मतलब मिडिवल एज और डार्क एज, ये वो नेशंस हैं जिन्होंने इंटेलेक्चुअली अपनी लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बहुत कुछ प्रोड्यूस किया। इसी तरह मिडिल एज के अंदर एक और एक पॉइंट था जिसकी वजह से हमने मिडिल एज का डार्क एज और डाउनफॉल देखा, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो क्या थे? वो थी ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ ये पेंडेमिक था जो कि यूरोप में फैला 14th सेंचुरी के अंदर, और उसने जो है 34 मिलियन पीपल को जो है वो इसका जो है वो मौत के घाट उतारा। तो इसका बहुत गहरा असर उसकी इकोनॉमी पे पड़ा यूरोप के ऊपर, और यूरोप जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइसिस का शिकार हुआ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ये होली रोमन एम्पायर, यहाँ पे बिजेंटीन एम्पायर आपको नजर आ रही है। यू कैन सी दैट। ओके, होली रोमन एम्पायर एंड द बिजेंटीन एम्पायर, यू कैन सी इन द मैप इन फ्रंट ऑफ यू। ये जो एक बड़ी एम्पायर क्रिएट हुई, और फिर ये बिजेंटीन एम्पायर जो वेस्ट के पास थी, उसमें आप देख सकते हैं अलेक्जेंड्रिया शहर, जो आई विल टोल यू अबाउट दैट की इम्पोर्टेंस क्या थी इंटेलेक्चुअली। यहाँ बहुत बड़ी जो है वो बुक्स का एक जो है एम्बार था, लाइब्रेरी बनी थी शहर की बहुत बड़ी। इजिप्ट हो गया, फिर फलस्तीन देख रहे हैं आप मौजूद है यहाँ पे। और जो ऑरेंज से है ये मेसोपोटामिया, जो सबसे पहली सिविलाइजेशन है जिसको आप तुर्की के नाम से जाना जाता है। आप क्या ठीक है, और इसमें फिर एक और स्टेट है, वो अभी आगे जाके देखेंगे हम, कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल। तो उसकी क्या अहमियत है वो भी अभी आपको पता लगेगी। अच्छा, इसी दौर के अंदर सब कुछ जो मिडिवल पीरियड है उसके अंदर बहुत सारी इन्वेंशन इनोवेशंस भी हुई हैं, जैसे गन पाउडर है, अकाउंट्स की इजाद हो गई, समझ लें बेसिक प्रिंसिपल्स बन गए, प्रिंटिंग प्रेस आया जिसकी वजह से लिटरेरी वर्क और ज़्यादा बेटर अंदाज में प्रोड्यूस होने लगा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस ज़माने की, वो कि इसमें पोएम्स जो हैं और फोक टेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। उसकी वजह थी कि उस ज़माने में बादशाहत थी, जैसे अभी हम देखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम है और उसके अंदर किंग लॉर्ड है, फ्यूडल है। तो आपने देखा होगा परियों की कहानियाँ, शहजादों की कहानियाँ, और फेरी टेल्स जो हैं वो जेनी की, अली बाबा 40 चोर हो गए, और शहजादा है उसको मिल गया, शहजादी ढूंढ रही है, सिंड्रेला, इस तरह की, स्नो वाइट, ये जो किस्से कहानियां थे जितने भी अलादीन की कहानी, ये सब इसी मिडिवल पीरियड में लिखी गई हैं, क्योंकि बेसिकली वो बादशाहत का था शहजादा और ये एम्परर। तो ये जो कहानियां थी वो इसी तरह के किस्से, हिकायात और दास्तानें थी, फेबल्स जिसे कहते हैं, स्टोरीज जिसे कहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा, और बल्कि मैंने आपको बताया था कि उस जमाने के गेम, जैसे कि चेस गेम आप लोग खेलते हैं, तो वो पूरे फ्यूडल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक नाइट्स हैं, फिर उसके अलावा पॉन है, पॉन पीसेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वर्कर किसान को, और नाइट्स हैं जो रखवाले होते थे उस जमीन के और बादशाह के प्रोटेक्टर, और फिर कोई है, और उसके बाद जो है वो उसमें बिशोप्स हैं। तो ये बेसिकली ये बिल्कुल उसी की अक्कासी करता था, और ये गेम जो है वो भी मिडिवल एज की ही। तो मिडिवल एज का जो कल्चर है वो आपको शायद समझ आया कि वहाँ पे जो एक सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो वो पूरा फ्यूडल सिस्टम था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। तो अर्ली मिडिल एज, यानी जो अर्ली मिडिल एज है वो कम्प्लीटली डार्क एज इसलिए है, उसको डार्क एज क्यों कहते हैं, क्वेश्चन अगर आता है तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ये है कि ये डार्कनेस में था, वेस्ट डार्कनेस में था, बाबिलियन थे, वॉर्स की तरफ ज्यादा थे, और कलम के बजाय तलवारों से ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक इंटेलेक्चुअली इन्होंने इतना ज्यादा कुछ जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए उसको डार्क एज कंसिडर किया जाता है। और बहुत से कहते हैं कि ये लॉस्ट राइटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क एजेस के अंदर कुछ बहुत सी और अच्छे गुड काम भी हुए, जैसे कि यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई हैं, यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई है, और बहुत सारे जो है वो इसमें अगर आप किसी रिलीजियस से पूछें, रिलीजियस पर्सन, तो वो कहेगा कि ये तो हमारा गोल्डन पीरियड था, क्योंकि हम यहाँ पे अपने मजहब के मुताबिक चीज़ों को ढाल रहे थे, कि जैसे कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स कोई हो, या फिर आप मुस्लिम से पूछें तो वो भी ये कहेंगे कि हमारा तो गोल्डन एज है, और ये इसको वेस्ट में इसको डार्क एज कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसी में एक शहर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो है कुस्तुनतुनिया, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको इस्तांबुल कहते हैं। ये जो बेज़ंटीन एम्पायर का शहर था,
सॉरी ये कैपिटल रहा है, और ये बहुत बड़ी इसकी अहमियत थी, क्योंकि ये जैसे कि आज यूएस डॉलर है, इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है, इसी तरीके से बेंजीन के जो पॉइंट थे बेजेंट, वो एक इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड हब था क्वेश्चन दुनिया, और जिसने इसको पता कर लिया तो समझो उसने पूरी एम्पायर को रूल कर लिया, ये कैपिटल था। तो यहाँ पे एक रोमन मॉडल फॉलो होता था, यानी गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, पूरा इंपीरियल सिस्टम, पार्लियामेंट है, एम्पायर भी है, टैक्सेशन हैं, और रॉयल फैमिली जो है वो ज्यादा, खास करके जो मैंने आपको बताया कि जो चर्च, प्रियर्स, पोप, बिशप, ये 1/3 ऑफ द यूरोप जो है वो ओन करते थे, तो बहुत रिच थे, क्योंकि उन्होंने टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा रखा था कि वो चर्च के पास आया करता था, और चर्च ने काफ़ी सारी जो है वो मोनेस्ट्री से लाइब्रेरीज के लिए आप, और वो इबादतगाहें, गिरजागाहें बनाई हैं, तो ये सारा कुछ। तो डार्क एज को हमने बताया आपको, जैसे कि डार्क एज क्यों हम डार्क एज कह रहे हैं, बार बार हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे कल्चर, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली डिटोरिएशन की कोई खास हाथरफा प्रोड्यूस नहीं हुआ, यूरोप डिक्लाइन पे था, रोमन एम्पायर तबाह होने की जो एक बहुत बड़ी एक एम्पायर थी वो डिक्लाइन की तरफ जाती गई, और बेसिकली वो लाइट से डार्कनेस की तरफ जाते गए, यानी अंधेरों की तरफ जाते गए, और इसलिए उसको डार्क एज, मिडिल एज को कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि समटाइम कॉल्ड द मिडिवल पीरियड भी कहते हैं उसको, और मिडिवल लैटिन वर्ड है, इसको मिडिवल का मतलब मिडिल एज ही होता है, और ये कब का टाइम है, रोमन एम्पायर के फॉल से लेकर रेनेसां। रेनेसां क्या है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर कंडक्ट करेंगे, 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड के जो आइडियाज, लाइक 16, 17 सेंचुरी, 15, 16, 17 सेंचुरी, ये जो आइडियाज हैं यानी 200 to 300 इयर्स, ये रेनेसां है। रेनेसां का मतलब होता है री इंटरप्रिटेशन, जब समझे डार्कनेस से फिर लाइट की तरफ आए, एनलाइटन होना शुरू हुए, रोशन ख्याली, एनलाइटनमेंट। लेकिन ये जो डार्क एज है, जो हाई मिडिल एज है, ये इनके दरमियान है, रोमन एम्पायर के फॉल से लेके रेनेसां के दरमियान था। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रेनेसां पे ही है। राइट नाउ हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, एक रिव्यू हो जाएगा कि मिडिल एज के अंदर सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि जो स्टेट को रूल कर रहा था वो चर्च था, पोप थे, इसको पेपिसी कहेंगे, कंट्रोल सारा का सारा बुक्स के ऊपर, लॉ के ऊपर, बल्कि इंसान की जिंदगियों के ऊपर जो है वो पोप का बहुत बड़ा जो है वो एक कंट्रोल था, इन्फ्लुएंस था, और जो भी किंग होता था वो भी फिर वो उससे एक ताबे हो जाता था, ओथ ले लेता था। तो चर्च हैड द पावर ओवर द किंग एज वेल। इस तरह जो नोबल्स होते थे वो प्रोटेक्ट करते थे किंग को, और किंग को प्रोटेक्ट कर रहे एक तरह से रिलीजियसली तौर पे चर्च, और फिर जो बेचारे पीसेंट हैं, यानी वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो भी नोबल के लिए काम करते थे। ठीक है, जमीनों पे, ये मैं भी आपको फ्लो चार्ट में दिखाता हूँ। तो ये हम जो है, अच्छा प्लैग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। अच्छा मैं आपको वो दिखाता हूँ, यस यस, हियर इज अ, ठीक है। तो चर्च में मैंने जैसे आपको बताया ये पूरा स्ट्रक्चर था, इस तरह का स्ट्रक्चर था कि जो मिडिवल एज के अंदर कानून चर्च की तरफ से बन रहे हैं, उसमें हेड ऑफ द चर्च पोप है, रीजनल लीडर बिशप्स होते थे, लोकल अथॉरिटी क्राइस्ट होते थे, और ये जो सिस्टम था ये पूरा एक फ्यूडल सिस्टम बना था। यानी आप देखें नीचे पीसेंट है बेचारा, मजदूर वर्कर फसल काट रहा है, खेती बाड़ी में एंगेज है, उससे ऊपर नाइट्स हैं जो लॉर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ्यूडल लॉर्ड जो होता था उसकी जमीनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मजदूर जो है उसको उसकी जमीन पे काश को कोई नुकसान ना पहुंचाए और कोई वॉरियर ना आ जाए और उसको कॉन्क्यूर कर ले। उससे ऊपर जो है वो टेनेंट, यानी जो उसके ऊपर गिरहिन देते थे, लगान देते थे, एक तरह का टैक्स कह लें आप जमीनों के ऊपर, वो लैंड लॉर्ड दे, और उससे ऊपर एक बादशाह। अब बादशाह से ऊपर भी एक है, वो कौन है, वो है पोप, वो है चर्च, और इस तरह से पूरी इतनी बड़ी एक हिरार्की बनी गई थी, जिसके अंदर जो सबसे नीचे ऑप्रेस हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, वो कौन है, वो बेचारा पीसेंट है, वर्कर है, वो फार्मर है, वो मजदूर है, काम सा आदमी है। और इतने सारे टैक्स मौजूद थे मुख्तलिफ नामों के साथ फ्यूडलिज्म के अंदर। एक टैक्स जा रहा है नाइट की प्रोटेक्शन के लिए, तो एक टैक्स जा रहा है जमीन के लिए, तो एक टैक्स जा रहा है बादशाह के पास, एक टैक्स जा रहा है कि वो अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा बादशाह लॉर्ड जो है वो रखा करता था। तो ये जो देखें ना आप सिस्टम पूरा किस तरह से बन रहा है कि जो है पीसेंट जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहा है, फूड दे रहा है, मतलब फसल उगा के दे रहा है, नाइट्स उसको प्रोटेक्शन दे रहा है लॉर्ड को, और लॉर्ड से लाइव है,
क्योंकि वो जो लॉर्ड होता है फ्यूडल लॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट करना नाइट्स की गहरी जिम्मेदारी होती थी। फिर उससे ऊपर चले जाएं तो लॉर्ड जो है वो फ्यूडल लॉर्ड है, वो किसको अपना एक हिस्सा अपनी फसल का, फूड का, मुनाफे का वो किंग को दे रहा है, और फिर किंग किसको दे रहा है, वो पोप को, चर्च को। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था। अब इसी के ऊपर अभी आप देखिए एक मजहबी रंग आएगा, यही पूरी की पूरी मिलिट्री सर्विस जो नाइट्स हैं, यही जब होली वॉर डिक्लेयर हुई, जब क्रिस्टियनिटी ने बहुत जोर पकड़ा, तो यही जो है नाइट्स जो है, ये नाइट राइडर्स जो है, ये इन्होंने फिर जो है क्रूसाइड्स लड़ी। क्रूसाइड्स क्या होती हैं, ये एक होली वॉर होती है जो अपनी होली लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिश्चियंस ने ज्यूज के साथ लड़ी, मुसलमानों के साथ लड़ी। तो ये जो नाइट शिप वो फिर कन्वर्ट हो गए होली वॉर्स के अंदर। तो जैसे कि आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे सर, ये अपनी लॉर्ड टू द लाइव नीडेड परमिशन टू मैरी एवरीथिंग अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड, नॉट अलाउड टू लीव लैंड, ये सारे कानून जो है वो लॉर्ड तय करता था। और ये देखें, रोमन कैथोलिक चर्च वाज द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन द वेस्टर्न यूरोप। मैंने कहा ना 1/3, 1/2 हिस्सा यूरोप का जो है, आज भी इटली में आप जाएं और फ्लोरेंस, रोम और यूरोपियन कंट्रीज को विजिट करें, तो कभी जाना हो आपका, तो आप देखिएगा वहाँ पे चर्च, मोनेस्ट्रीज हमें ज्यादा नजर आती है। स्कूल लेवल पे भी आपने ये चीजें देखी होंगी कि ये जो पूरा फ्यूडल सिस्टम किस तरह से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि नीचे बेचारा मजदूर है और वो काम कर रहा है, फिर वो अपने मवेशी से फसल उगा के वो जो है वो नोबल्स को दे रहा है, और उसके सोल्जर्स हैं यानी नाइट्स जिसे कह रहे हैं, फिर वो सोल्जर्स जो है ये अपना हिस्सा और टाइटल ये बादशाह को दे रहा है, फिर बादशाह जो है वो उसका कुछ हिस्सा फिर मैंने कहा जैसे कि पोप। तो ये पूरा एक माशी निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से चलता आ रहा था। ठीक है, अब इसी में हम इंटेलेक्चुअली बात करें तो मैंने आपसे कहा कि किसी को लिखना पढ़ना है तो वो भी कहाँ का रुख करेगा, वो चर्च का रुख करेगा। रिलीजियस कम्युनिटीज बनी थी मोनेस्ट्रीज के नाम से, जिसमें मॉन्क एंड नन, ये जो मॉन्क एंड नन थे ये अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर देते थे क्रिस्टियनिटी के नाम पे और मजहब के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, और वो वहाँ पे लिखते पढ़ते, मजहबी इबादत करते, ट्रांसलेशन करते, तो वही फिर लोगों को बता। अच्छा, ये बेसिकली स्कूल थे। अब ये स्कूल इस तरह से थे कि रिलीजियस भी तालीम मिल रही है तो उनको साइंस भी मिल रही है, तो ये इस तरह उनका काम था। और एक और चीज समझाने की जरूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, देख रहे हैं ना आप, ये जो मिडिवल पीरियड की थॉट आपको नजर आ रही है, एक फ्यूडल सिस्टम है, फिर एक किंग है, और तो ये जो कैसल की तामीर का बड़े बड़े जो महलात जिसे कहते हैं, तो ये बनना शुरू हुए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर रहा। और अब जरा हम आते हैं डार्क एज की जो है वो, ये होली रोमन एम्पायर्स के बाद ये आ जाते हैं हम क्रूसाइड्स, तो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये सारी क्रूसाइड्स क्या है, होली वॉर्स रहेंगे बिज़ेंटाइन एम्पायर्स के लिए। और मिडिवल रिलीजन्स के अंदर बेसिकली मिडिवल पीरियड और मिडिवल रिलीजन में हमने क्या कहा था कि जो कैथोलिक चर्च था वो डोमिनेंट था। आपकी जिंदगी के मामूली से मामूली मामलात को भी कौन डिसीजन लेगा, वो चर्च लेगा, डिवाइन राइट्स जिसे कह रहे हैं। और इसको डिसओबे करना तो ऐसा था क्योंकि किंग को कह रहे हैं कि चूजन है बाय द गॉड। तो अगर किंग की बात को मानने का मतलब, ना मानने का मतलब है ये है कि आप खुदा की बात को नहीं मान रहे, वो डिवाइन बात कर रहा है, वो चूजन है। तो ये जो एक कंसेप्ट था वो होली रोमन एम्पायर की शक्ल अख्तियार कर दिया, और रोमन एम्पायर का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली कैथोलिक। तो आप जरा डिफरेंस देख सकते हैं रोमन एम्पायर से वो कैथोलिक चर्च यानी होली रोमन एम्पायर जिसे मैंने कहा, तो देख रहे हैं पोप के हाथ में आ गया, बिशप्स के हाथ में आ गया, कानून भी जो है वो चर्च के हाथ में रहे। अब इसका असर क्या पड़ा अभी हम देखेंगे किस तरह से ये जो क्रूस, एक तो पहले बात ये कि क्रूसाइड जो हुई है आपके सामने, जो ये देखेंगे सारे वॉरियर नाइट राइडर्स से इन्होंने क्रूसाइड्स लगी, जिसे उर्दू में सलेबी जंगी कहते हैं। बहुत सुना होगा, जो यरूशलेम को सर करना चाहते थे, यरूशलेम जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो है तीनों रिलीजन को के लिए बड़ा एक अहमियत है, होली लैंड है। तो ये जो क्रूसाइड्स थी ये बेसिकली इसीलिए लड़ते गए और क्रिस्टियनिटी इसलिए कि भाई जैसे वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, मुसलमान इसलिए लड़ते क्यों, कहते हैं हमारी होली लैंड है, नमीम ऑफ अल्लाह। तो सलादीन सुल्तान ऑफ इजिप्ट, उसने कंक्यूर किया था जेरूसलम को 1187 के अंदर, और वो क्रूसाइड में इसको फतह हुई।
तो अब आप देख रहे हैं कि ये सारा जो एक सिस्टम है वो किस तरह से कोलैप्स हुआ, और उसके बाद हम आगे अगर हम जाएं तो ये इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये देखें सलादीन जब ये जिसको कहते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर थी बिकम द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जिसको कुस्तुनतुनिया का जो है वो इस्तांबुल जिसे कहते हैं, जो ऑटोमन तुर्क्स ने विन किया, तो ये किला पता करना था उस क्रूसाइड्स के अंदर। तो जितनी आखिरी क्रूसाइड रही है उसके अंदर ये विन किए। और उसके बाद अब हम जरा देखते हैं, ये तो हमने एक पॉलिटिकली देख लिया, तो इंटेलेक्चुअली क्या हुआ, एक पहली यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है, और मेडिसिन पे लॉ पे काम होना शुरू हुआ, और ये जो यूनिवर्सिटीज का एक करिकुलम है, ये गाउन है, कैप है, शेड्यूल रूम, ये सब जो है ये भी मिडिल एज में हो। तो मिडिल एज में सब कुछ डार्क नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बस्ती की तरफ नहीं है, कुछ अच्छा भी है, जैसे कि तो रिलीजियस चीज़ों का एक हाईलाइट होना। दूसरी बात ये कि इंटेलेक्चुअली ज़्यादा कहते हैं प्रोड्यूस है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज की बुनियाद रखी गई, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, और उसके अलावा एक लैटिन और ग्रीक में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, तो एक ग्रामर, एक लैंग्वेज, एक डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो ये तो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में भी देखा है सारा कुछ। और अब जरा हम कुछ जो है वो मिडिवल, फिर हमने क्लास में इसको अगर हम देखें तो आइडियाज जो थे वो किस तरह से थे, इसको हम क्यों एज ऑफ फेथ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फेथ की बात कर रहे हैं। ओवर द रीजन डिवाइन कमांड की बात हो रही है, गॉड सेंटर्ड है, फिर गॉड, डेविल, एंजल्स, डिमोन ये दुनिया को रूल कर रहे हैं। सब कुछ प्री डेस्टिनी है, ह्यूमन के पास फ्री विल नहीं है, इंसान जो है रैशनल बीइंग नहीं है, बल्कि इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग है। तो ये सारा आर्ग्यूमेंट हमने देखा, और उसकी सपोर्ट के लिए फिर हमने सेंट ऑगस्टीन जो एक क्रिश्चियन फिलोसोफर है उनका कंट्रीब्यूशन देखा था। वो कि क्या था, वो ये था कि एक डिबेट थी, वो ये थी कि गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट है, गॉड जो है वो ओमनीसाइंट है, यानी गॉड इज ऑल नोइंग, गॉड इज ऑल प्रेजेंट, गॉड इज बेनिवोलेंट, गॉड इज ऑल गुड। तो फिर व्हाई द इविल एग्जिस्ट, इविल क्यों एग्जिस्ट करता है। और इससे पहले मैंने आपको एक और बताया था, ये जो मैनिचिज्म है, यानी मैनी एक स्कॉलर है, तो उसने एक आर्गुमेंट किया था कि दो तरह की कुव्वत है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दो तरह के खुदा हैं, एक अच्छा खुदा है, एक बुरा खुदा है। उन दोनों के दरमियान जब एक क्लैश होता है तो उसमें से अगर अच्छाई जीत जाती है तो दुनिया में अच्छाई नजर आती है, जब बुराई जीत जाती है तो फिर दुनिया में बुरा, जितनी क्रूसाइड, जंगे, मैसाकार्स, तबाहियां हुई हैं। लेकिन सेंट ऑगस्टीन एक क्रिश्चियन फिलोसोफर है, एक रिलीजियस फिलोसोफर है, थियोलॉजियन है, तो उसने इसके जवाब ऐसे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड इज ऑल गुड, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज लाइट, द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, तो देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज गुडनेस, अच्छा ही सब कुछ है। गॉड इज ऑल गुड, द एब्सेंस ऑफ गुडनेस, sorry, the absence of good, हाँ बिल्कुल ठीक है, the absence of goodness is called the evil, the absence of light is called the darkness, the absence of honesty is the dishonesty। तो वो कहता है कि there is only one thing, God is all good। एक बात, दूसरी बात कि हम जिम्मेदार हैं खुद, क्योंकि खुदा ने हमें फ्री विल दी है। Everyone has a free will or we are responsible for our own choices। हमारे पास कंप्लीट अख्तियार है कि हम वेदर वी चूज द गुड और वेदर वी चूज द बैड, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो दुनिया में जितनी तबाहियां हुई हैं, दुनिया में जितनी जंगें लड़ी गई हैं, उसका जिम्मेदार इंसान खुदा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी एक और बात कि भाई जब एग्जाम होता है तो एग्जामिनर अगर पूरा पेपर ही बता दे तो फिर एग्जाम कैसा। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जो जजा सजा का तस्वुर है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा सिरे से। अगर गॉड इंटरवीन कर दे तो गॉड इज नोअर, गॉड इज ऑल नोइंग, बट गॉड हमें टेस्टिफाई करता है हमारे बिलीफ को, फेथ को। तो ये सेंट ऑगस्टीन ने इस तरह से आर्गुमेंट दिए, और ये जो क्वेश्चन रेज किया था कि ईवल जो है वो कहाँ से रेज हो रहा है और ईवल जो है वो दुनिया में है, तो इसका जवाब सेंट ऑगस्टीन ने बताया, यही जो मैंने अभी आपके सामने आर्गुमेंट रखे हैं कि नहीं, गॉड इज द ग्रेट कॉज है, गॉड इज ऑल गुड है, और हमें जितनी ट्रू नॉलेज अटेन होती है वो खुदा से ही होती है। डिवाइन लव, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। 3-16 ये बाइबल की लाइन है।
तो ये सारा आर्गुमेंट हमें नजर आता है। फिर इंसान को दर्जा दे के गॉड क्रिएटेड ह्यूमन एज एन इमेज ऑफ द गॉड, और खुदा ने इंसान को भी जो है वो अपने मिसल बनाया, यानी उसको एक नाइब वाइस बनाया, तो अक्ल दी है खुदा ने, उसको इस्तेमाल करे और वो खुदा की इबादत में इस्तेमाल करे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। फिर उसने ये भी बताया कि ये जो दुनिया में डाउनफॉल आ रहा है इंसान का, उसकी वजह ये है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों में चला गया, मादी चीजों में उलझ के रह गया। तो एक बॉडी है और एक स्पिरिट है, तो वो स्पिरिचुअल चीजों को छोड़ के वो बॉडी मटेरियल फिजिकल चीजों की तरफ गया। यही वजह बनी रोमन एम्पायर के डिक्लाइन और होली रोमन एम्पायर के डिक्लाइन। तो ये बड़ा अच्छा सा उसका एक आर्गुमेंट रहा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं ये जो सारा पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके सामने रखा है, गॉड इज परफेक्ट, द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड रिफ्लेक्टेड द परफेक्शन, इविल इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ डिप्रावेशन। इविल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इविल क्या है, ये एब्सेंस है। डिप्राइव कहते हैं महरूमी को, जब आप अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई की तरफ चले जाएंगे। तो ये इसने कॉन्सेप्ट दिया। और एक छोटी सी और कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी में था कि भाई जब इंसान बॉर्न होता है तो उसके साथ वो जो सिन है, जैसे ओरिजिनल सिन कहते हैं, वो एडम एंड ईव ने जो किया, इसकी वजह से वो जन्नत से निकाला गया, तो वो इंसान के साथ इनेट है, यानी बुराई। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, बाय बॉर्न ह्यूमन जो है वो इनोसेंट है, वो प्योर है। अब वो जैसे जैसे गुनाह करेगा तो वो बुरी सोच हो जाएगी, अच्छा करेगा तो अच्छी। ऐसा नहीं है कि इनेट जो है वो कोई इविलनेस उसके साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। अब हम आते हैं आज के डिटेल टॉपिक के ऊपर, वो था प्रोटेस्टेंटाइजेशन जो आपके पार्ट है। और देखिए कैथोलिक, रोमन कैथोलिक या कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स, उसके बिल्कुल अपोजिट एक और रिलीजियस मूवमेंट है, उसका नाम है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट कहते हैं एहतजाज को, उसी से एक मूवमेंट चली प्रोटेस्टेंटाइजेशन। ये क्रिश्चियनिटी का एक फिका कह लें, एक फिरका कह लें, या एक तरह का रिलीजियस जो है वो डिफरेंस है। वो क्या था, वो बेसिकली ये था कि 16वीं सेंचुरी से उन्होंने आवाजें उठाई और ये था रिफॉर्मेशन लाना। कैसे रिफॉर्मेशन लाना, रिलीजियस रिफॉर्मेशन लाना। बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, और उन्होंने ह्यूमन से उनके राइट्स भी छीन लिए। कौन से राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, कि वो खुद से पढ़ भी नहीं सकते, खुद से वो चीजों को समझ भी नहीं सकते, उनको किसका सहारा लेना पड़ेगा, पोप का, चर्च का, जो वो उनको ट्रांसलेट करके बताए, जैसी वो इंटरप्रिटेशंस उनको दे। इसी तरीके से उसकी जो निजी जिंदगी है, प्राइवेट लाइफ है, उसके भी तमाम तरह मामलात के अंदर उसको किससे मशवरा और इजाजत, परमिशन लेनी है, वो लेनी है पोप से या चर्च से। दूसरी बात, उसको उन्होंने देखा कि जो चर्च है वो एक करप्शन की तरफ आता गया, वो पैसे का इस्तेमाल चर्च और फिर अपनी जाती ख्वाहिशात और चीजों की तरफ लगाता गया। तो ये जो प्रोटेस्टेंट थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसको रिलीजियस रिफॉर्मेशन कहते हैं, और उसमें वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट जो है इंसान को अहमियत दी जाए, और इंसान जो है वो इंसान खुद बजाते खुद भी चीजों को समझ सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट यही है कि मजहब को और स्टेट को, दोनों को अलग किया जाए। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, सेक्युलरिज्म। अब लव सेक्युलर का मतलब क्या है कि रिलीजन शुड बी सेपरेट फ्रॉम द स्टेट अफेयर। आई रिपीट इट अगेन, रिलीजन शुड बी सेपरेट फ्रॉम द स्टेट अफेयर, यानी सियासत अलग होनी चाहिए, सियासत और रियासत अलग, और मजहब अलग। जो मजहब है, रिलीजियस चीजें हैं, वो एक प्राइवेट मैटर है, वो एक पर्सनल है कि तुम क्या मानते हो, तुम किस पे मानते हो, तुम कैसी इबादत करते हो, तुम इबादत जन्नत, दोज़ख, पैराडाइज, हेवन, ये सब इंडिविजुअल का प्राइवेट पर्सनल मैटर है। पोप डिक्लेयर नहीं करेगा, चर्च डिक्लेयर नहीं करेगा कि तुम बुरे हो, तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, कोई तुम्हारे साथ ट्रेडिंग नहीं करेगा, और तुम जो है वो तुमने संडे इतने मिस कर दिए और तुम्हें जो है वो एक्सक्रिमिनेट कर दिया, निकाल दिया जाता है इस सोसाइटी से, ऐसा नहीं करेगा। ये इख्तियार जो है वो खुदा के पास है और आपका लाइफ में होगा। तो ये जो एक सेपरेशन था कि चर्च जो है, स्टेट जो है वो रियासत चलाए, सियासत करे, लेकिन रिलीजियस चीजों को इससे बिल्कुल डिफरेंट करे। तो ये बहुत जबरदस्त एक पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन था, रिलीजियस रिफॉर्मेशन था, जिससे फिर कलम से कुछ लिखना शुरू हुआ सिलसिला। और लेकिन उस जमाने में जैसे फ्रांसिस बेकन, जिसकी आपने कोटेशन सुनी होगी, नॉलेज इज पावर, और जो है वो गैलीलियो
जिसने वो टेलीस्कोप और बनाया, और इस तरह से और भी एक दो नाम और हैं जिन्होंने जब लिटरेचर, हाँ कोपरनिकस का रेवोल्यूशन, तो ये जो रिलीजियस चर्च थे उनको बहुत भाया नहीं, उनको किसी ने सजा दी थी, किसी को जलवतन कर दिया, किसी को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो जो साइंस थे वो समझते थे कि ये हेरेसी, मतलब ये कोई खुदाई का दावा कर रहे हैं, मतलब ये हमारी चीजों को चैलेंज कर रहे हैं। तो रिलीजन के सामने साइंस जो है वो बहुत कंसिडर की जाती थी कि कोई बुरी चीज है। तो क्यों? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली चीजों को कंसिडर नहीं कर रहा है, फेथ ओवर द रीजन है। तो जो रैशनैलिटी थी, रीजन थी, उसकी कोई स्पेस नहीं थी। तो ये जो रिफॉर्म लाना था, ये सारा का सारा रिफॉर्म जो है वो प्रोटेस्टिनेशन में लूथर का नाम मार्टिन लूथर है जिसने ये रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की। और फिर एक कॉन्सेप्ट हमें नजर आया ह्यूमनिज्म, यानी इंसान को अहमियत दो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से रेनेसां का अगला आर्गुमेंट भी बनेगा कि वी द ह्यूमन आर फर्स्ट एंड द रेस्ट आर द सेकेंडरी। हम पहले इंसान हैं, बाकी सब कुछ हम बाद में हैं। वी द ह्यूमन आर द फर्स्ट एंड द रेस्ट आर द सेकेंडरी। तो ये जो रिफॉर्मेशन थी जिसमें ह्यूमैनिटी की बात की गई, और फिर इंसान स्कूल में लिखना पढ़ना शुरू किया, और फिर वो चर्च बाइबल की चीजों को उसने अंडरस्टैंड करना शुरू किया, और इस तरह से जो है फिर एक यूरोप का कल्चर बिल्कुल बदला, लिखने पढ़ने की तरफ भी गया। और इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे एरास्मस है एक फिलोसोफर, क्रिश्चियन फिलोसोफर्स हैं, तो उसमें इस तरह से चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की स्क्रिप्चर से, होली बाइबल के, और साथ साथ जो है वो रीजंस के साथ। और जो मैंने आपको नाम बताया था कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो है, मार्टिन लूथर 1483 से 1546 इसकी बर्थ एंड डेथ है। तो 15th सेंचुरी में इस आइडियाज का इन्फ्लुएंस रहा, और इसने एक नया रिलीजन जो है वो प्रमोट किया जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट। और आज भी वो प्रोटेस्टेंटाइजेशन कहलाती है, नजर आती है हमें, ठीक है। और उस जमाने के जो रिलीजियस फिलोसोफर है, ये चार का बहुत गहरा असर है। विलियम ओखम रेजर के नाम से बड़ी थ्योरी है। सेंट एक्यूनस है जिन्होंने एक आर्गुमेंट जो दिया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। सेंट ऑगस्टाइन जो आपको पढ़ा चुके हैं, एरास्मस, और एक और कॉन्सेप्ट है थॉमस मूर। थॉमस मूर का जो कॉन्सेप्ट है यूथोपिया का, उन्होंने एक बैलेंस करने की कोशिश की। वही बात मैंने जैसे कहा कि रिलीजन को और साथ साथ में साइंटिफिक रिलीजियस चीजों को। तो और एक और बड़ा रेवोल्यूशन जो फ्यूडल सिस्टम था, वो जो एक माशी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम था, वो आपने देखा, वो उनको लगा कि ये इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज में। जैसे पहले जमाने में वॉरियर कॉन्क्यूरर गुलाम बनाता था, लेकिन अब यहाँ पे चर्च के जरिए और यहाँ पे पेसी के जरिए और यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड के जरिए जो है वो पीसन को दबाया जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, उसमें बड़ी कंट्रोवर्शियल बुक थी यूथोपिया। इसने एक आइडियलिस्ट लाइफ बताई कि किस तरह से एक दुनिया बननी चाहिए, लोग कैसे रहने चाहिए, और ये बड़ा कॉन्सेप्ट ने बताया कि यहाँ पे सब मिलके रहें, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, कम्युनिटी हो, दूसरी बात सब एक दूसरे से के साथ कोऑपरेट करें, अक्ल की बेसिस के ऊपर चाहे, ना कि पावर ऑफ फेम के ऊपर। उसके अलावा इसमें सब लोग 9 to 8 आवर्स काम करें, और लोग अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली काम करें, और उनको उनकी उजरत और मुआवजा मिले। और ये जो पूरे आइडियाज थे वो एक इमेजिनरी आइडिया थे यूथोपिया के अंदर। थॉमस मूर ने बेसिकली उस फ्यूडलिज्म के बगावत में कहना चाह रहे थे। इसका असर ये हुआ कि बाद में फिर बहुत सारे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी आए, जो कि हमें मॉडर्निटी के अंदर नजर आएंगे, एनलाइटनमेंट के अंदर नजर आएंगे। तो लेकिन 15th सेंचुरी में ये आवाजें राइज होना शुरू हो गई, ठीक है, कि जो है मोर वाज अ मैन ऑफ कॉन्शियस एंड गिव अप हिज लाइफ अपोजिंग मिलियन विद द रोमन कैथोलिक चर्च ओवर द। अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली यही है कि कॉन्शियसनेस का, अक्ल का इस्तेमाल किया जाए। और ये जो रिफॉर्मेशन से किस तरह के थे कि जो करप्ट है वो करप्शन का शिकार हो गया चर्च जो है, कैथोलिक चर्च। और जो है हमें स्पिरिचुअलिटी, नो मोर रिलीजियस अथॉरिटी, वी आर रिक्वायर्ड टू रूल ओवर द स्टेट। रियासत को चलाने के लिए हमें मजहबी लोगों की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने मूवमेंट चलाई, ठीक है। अब ये जो आपका पूरा जो कंटेंट है रिलीजियस प्रोटेस्टेंटाइजेशन, तो उसके अंदर जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है ये आपकी कवर हो जाएगी कि लूथर ने किस तरह की बात की। उसने कहा कि बाइबल को खुद से समझा जा सकता है, और फिर उसने लोगों को कहा कि वो सवाल करें, डेयर टू आस्क अ क्वेश्चन, और रिलीजन को खुद से भी समझने की कोशिश करें, ना कि ये कि ब्लाइंडली जो चर्च बताया उसको आप मानते चले जाएं।
اور جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اسٹیٹ کو اور چرچ کو علیحدہ کیا جائے. چرچ کا کام جو ہے وہ لوگوں کے اسپرچولی گرو کرنا کام ہے, نہ کہ وہ ویلتھ کو کنٹرول کر کے بیٹھ جائے اور پوری ریاست کو چلائے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ کہاں تک پھیلتے چلے گئے, پھر جرمنی میں اور پورے یورپ میں یہ جو پروٹسٹینائزیشن ہے یہ جو ہے وہ آئیڈیاز چلتے گئے, اور یورپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہی جسے آج ہم کہتے ہیں کہ لبرلائزیشن کی طرف جاتا ہوا نظر آیا. جرمن میں, فرانس میں یہ جو پیپیسی مطلب پوپ کا جو نظام تھا وہ ہمیں جو ہے وہ ڈھلتا ہوا نظر آیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم بات کریں ریفارمیشنز کیا تھی, تو یہی ریفارمیشن صرف یورپ تک نہیں رہی بلکہ پھر انگلینڈ میں بھی اس کا اثر ہوا, اور وہاں پہ بھی جو کرسچینٹی تھی اس میں یہ ریفارمز آنا شروع ہوئے, اور اس طرح دنیا میں یہ نیو آرڈر ڈیولپ ہوا کہ ریلیجیس ہاؤسز جو ہے وہ بہت سارے کلوز ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, اباؤٹ 400 ریلیجیس ہاؤسز were closed in 1536, کیونکہ بتایا کہ آدھے سے زیادہ جب پاپولیشن جو ہے وہ ریلیجیس ڈومینیشن میں نظر آتی ہے. تو ابھی